Good morning, dear students. Today we are going to start our first chapter of chemistry, which is some basic concept of chemistry. As you know that chemistry is a branch of science which deals with the study of elements and compound. In this chapter, you will study about some basic concept of chemistry, uses of chemistry, concentration, molality, mole fraction, normality, significant figures, scientific notations, law of chemical combination, limiting reagent. So let me start with our first chapter, which is some basic concept of chemistry. Chemistry, it is a science in which we studied element and compound formed by them. केमिस्ट्री है वो ब्रांच है साइंस की जहाँ पर आप स्टडी करते हो अबाउट एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में. इट इज़ मेनली कंसर्न विद द इफेक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन आउटर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. यानी कि ये डिपेंड करता है जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर केमिस्ट्री पूरी तरह से डिपेंड करेगी. Importance of chemistry. You can see that chemistry is all around of us and it having a vast uses. So today I am talking about some major contribution of chemistry in various fields. Chemistry play an important role in our life. Some of the major contribution of chemistry to the life is modern world are as given below. First one is chemistry in industry. Chemistry play an important role in almost all industrial process. They are involved in manufacturing of synthetic fibers, plastic, paints, varnish, enamel, dyes, cement, glass, soap, detergent, extraction of metal like silver, gold, etc. You also study it in your 10th class. सो केमिस्ट्री का जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है. केमिस्ट्री को आप फाइबर, प्लास्टिक, पेंट, वर्निश, सीमेंट, डाइज, साबुन और यहाँ तक कि मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, दैट विल बी अकर ईदर आयरन, कॉपर विल बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर. केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग नीड्स ऑफ फूड एंड द हेल्थ केयर प्रोडक्ट. केमिस्ट्री का जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा होता है, मेनली जो फूड मटेरियल है उनको बढ़ाने में, एज वेल एज फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट सच एज केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट. दीज आर द केमिकल फर्टिलाइजर. इंसेक्टिसाइड सच एज द gamixane, methoxychlorine, and a preservative. What's the mean of preservative? Which used to prevent the food from decomposition or the oxidation. That will be known as the preservative, like sodium benzoate. Chemical in medicine. As you know that in today's scenario, chemistry is used in medicine also, and different kind of medicine is formed. Modern chemical discovery help in synthesis of many life-saving drugs like Taxol, cisplatin. Cisplatin is used for the curing of cancer. So let me start about the general topics. First one is matter. Anything which has a mass and occupies space is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है बेटा, that will be known as the matter. For example, book, pen, water, etc. If I'm talking about the states of matter, generally जो matter है वो 3 states में मिलता है. They are solid, liquid and gas. First one we will discuss about solids. Solids have definite shape and volume because of strong intermolecular forces. As you know that solids are definite in shape बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स. यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो आपस में बहुत पास पास रहते हैं. सेकेंड वन इज सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल ड्यू टू द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. दैट मीन्स सॉलिड हार्ड होते हैं और उनको आप कंप्रेस करना इजिली पॉसिबल नहीं होता बिकॉज वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एटम आर मोलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं. सोलिड डू नॉट डिफ्यूज इनटू वन अनदर. यानी कि सोलिड का जो डिफ्यूज़न होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से नहीं होता है बिकॉज द इमोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन द सॉलिड. यानी कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो आसानी से मोबिलिटी शो नहीं करते. मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करना. सेकेंड फॉर्म ऑफ मैटर इज लिक्विड. लिक्विड एज वाटर, alcohol, these all are liquid. So liquid do not have the definite shape but possess definite volume. You can see it that whenever you just use any liquid, it will consist
अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, यानी कि जो लिक्विड होता है उसका कोई भी शेप नहीं होता, जिस चीज़ में भी आप डालोगे उस शेप का वो हो जाता है, बट उसका एक वॉल्यूम डेफिनेट होता है. लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड ड्यू टू द मोर एम्प्टी स्पेस इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड को आप लिक्विड को सॉलिड के कंपैरिजन में आप कंप्रेस कर सकते हो. क्यों? बिकॉज सॉलिड की स्ट्रक्चर में कुछ फ्री स्पेस होता है. थर्ड वन इज द एटम्स और मोलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, यानी कि इसके जो एटम होते हैं लिक्विड्स के वो उतने टाइटली पैक नहीं होते जितने कि सॉलिड के होते हैं. लास्ट वन इज सॉलिड शोज स्लो डिफ्यूजन, यानी कि जो लिक्विड है वो डिफ्यूजन शो करता है, बट दैट डिफ्यूजन इज नॉट एज मच एज फाउंड इन gases. So third form of matter is gases. The air is gas. Gases have neither definite shape or the definite volume, यानी कि ना तो उनका definite shape होता है ना ही उनका definite volume होता है, because of the absence of any significant intermolecular forces, यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना तो उनका डेफिनेट शेप होगा ना ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं मिलता. गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल, गैस को आप कंप्रेस इजीली कर सकते हो बिकॉज उनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है बहुत सारी बेटा. देयर इज नो ऑर्डर इन आवर गैसेज, द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो एक जगह से दूसरे प्लेस पर आसानी से मूव कर सकते हैं. थर्ड फोर्थ वन इज गैसेज अंडरगो डिफ्यूजन इजली, यानी कि जो गैस हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं. सपोज इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ योर परफ्यूम, when the perfume bottle is opened, then the fragrance will be moved in all around of us. This is because of diffusion. So the gaseous particle shows diffusion. If I'm talking about the classification of matter in general form, matters can be classified into substance and mixture. Matter को जनरली substance और mixture के अंदर divide किया गया है. First one is pure substance. They consist of particles ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम मॉलिक्यूल, दे हैव फिक्स कंपोजिशन, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं प्योर उनमें एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस को जनरली क्लासीफाई किया जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, जो आपने आपकी 9th-10th स्टैंडर्ड में इजीली पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स. दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हो जो कि एक ही तरह के एटम से फॉर्म होते हैं. दैट विल बी नोन एज द एलिमेंट्स. दे आर सिंपलेस्ट सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस, यानी कि ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और इनको आप किसी भी दूसरे सब्सटेंस के अंदर या वापस उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है. दे आर द 118 एलिमेंट्स डिस्कवर टिल टुडे, यानी कि आज तक 118 एलिमेंट जो आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं बेटा, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं जनरली अभी 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं. दे कैन एग्जिस्ट एज एटम और द मॉलिक्यूल्स. वो एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशंस में हो सकते हैं. फर्स्टली atoms, they are smallest particle of elements. Firstly you have to be studied that the smallest part of matter, generally this theory was given by Dalton, that smallest particle of element is known as the atom. Any sodium, copper, Ag, silver, aurum, gold, any neon are atoms which exist freely, यानी कि जो फ्री स्टेट में मिलते हैं. atoms may or may not exist freely. HNOICL एटम्स हो सकता है कुछ फ्री स्टेट में मिले, हो सकता है कुछ फ्री स्टेट में ना भी मिले. वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसा होता है, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जुड़ जाते हैं देन दे विल प्रोड्यूस मॉलिक्यूल. दे आर कैपेबल ऑफ द फ्री एग्जिस्टेंस, वो भी फ्री एग्जिस्टेंस में मिलने की कैपेसिटी में रहते हैं. सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, कुछ एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन मिलते हैं. S2, N2, O2, Cl2, chlorine, bromine, iodine, O3, ozone are molecules of elements. These are molecules of element. Compounds. When 2 or more atoms of different elements combine together in fixed ratio, the molecule of a compound is formed. यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा different types के जो एलिमेंट्स से कंबाइन होंगे देन दे विल प्रोड्यूस कंपाउंड. तब जाकर वो क्या फॉर्म करेंगे बेटा, कंपाउंड बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूटिंग
constituting elements of a compound can be separated by chemical method and not by physical method। यानी कि जो compounds होते हैं उन्हें chemical method से separate किया जाता है, ना कि physical method से। They are the pure substance with fixed composition, fixed melting and boiling point and other physical chemical property। यानी कि जो compounds होते हैं वो generally fixed melting point रखते हैं, उनका fixed composition होता है और उनकी जो properties हैं वो भी fix होती हैं। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। द मीन ऑफ होमोजीनियस यानी कि जो प्रॉपरली बने हो, एक ही चीज़ से बने हो, पूरी तरह मिल जाए, दैट टर्म इज नॉन एज द homogeneous। That means general, if I'm talking about the general classification of matter, then the matter is classified into form pure and mixture. In pure we studied about the elements, atom, molecules and compound.